अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जिनमें बहुत से लोगों पर जो लोग एहसान करते हैं उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया मुरीदकी के इलाके रख बाउली में, जहां पर एक शख्स ने जामिन बनकर पैसे दिए, लेकिन जिसने पैसे लिए वो बजाय इसके कि उस जामिन को पैसे वापस करता, उसने बड़ी बेरहमी से 2 फायर मारकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया और खुद वो शख्स मुबैना तौर पर इटली भाग गया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। दोस्त ने ही मुबैना तौर पर अपने दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और तकरीबन 4 साढ़े 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक जो मुबैना कातिल है वो गिरफ्तार नहीं हुआ और ना ही मजलूम खानदान है जो उसको इंसाफ मिल सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस केस की मुद्दइया है और मकतूल की बेवा हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। अच्छा, सब तो पहला जी बड़ा अफसोस है सानू जी तुहाडे खामन नाल जो जुल्म होया, तुहाडे सारे नाल जो जुल्म होया, दसो कि कौन लोग सन, की वाकया है, कदों दा वाकया है, किस तरह इस हद तक गल पहुंच गई कि उन्होंने तुहाडे खामन नूं कतल कर दिता? सारे गल है कि वो ना नौसरबाद दा बंदा, वो माल डंगर खरीददा सी, साडा उन्हें 7.5 लाख रुपया देना सी, विच मेरा मियाँ गवाह हो गया, साडा भी देना सी ते नाल एक बंदा होर सी जिहड़ा शबान है, उन्हें लेना सी 7.5 लाख रुपया उहदे कोलों, उहदी मासी दा दोहतरा सी, साडा कुछ नहीं सी लगदा, वो गैर लोग सन, असीं होर सन, असीं इज्जत आबरू नाल गाँव च वसदे सां, दूरों आंदा सी, वो पिछे भी शिधारी सी, 5-4 बंदे उन्हें कतल कीते सन। लेकिन तुहाडे खामन दा दोस्त सी, जानन वाला सी या सिर्फ जानन वाला सी, दोस्त नहीं सी? हाँ जी, जानन वाला सी। वो व्यापारी सी, असीं उहदे कोल माल डंगर लेंदे रहे, वो डेरे उत्थे सैफ कौड़े दे डेरे ते उत्थे भी माल डंगर उन्हें दिता सी, विच मेरा मियाँ आखन लगा यार ये तेन दे देगा, बंदा माड़ा है, तेन पैसे दे देगा तो तू उन्हें माल डंगर दे दे, उन्हें दे दिता, ये जामन हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਮਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਾਨ ਸੀ ਆ ਮਰੀਦ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਈਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 7 ਲੱਖ ਚ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਦਪੁਰੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਵੱਲ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਕਬਾਲ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕਬਾਲ ਬਾਬੂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਾਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੋਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੋਜ਼ਰ ਦਾ ਫੈਕ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਟਕਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਫੈਰ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਕਈ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਨੀਰੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੂਨੀ ਅੱਡੇ ਚ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆਈ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ खोलिया। ऐसे मेरे बेटे ने माशाल्लाह निकाल की थी। एक शख्स 18 साल अपने बीवी बच्चों से, वालदैन से दूर रहता है और जब वो सारी ज़िंदगी कमाई करके वापस आता है पाकिस्तान और उसके कुछ ही अरसे बाद उसे मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के बेटे हैं ये, इनसे हम बात करते हैं। तकरीबन 4.5 साल पहले इनके वालिद को मुबैना तौर पर 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। ये क्या मामला कहाँ से शुरू हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया और क्यों इस हद तक बात चली गई कि उन्होंने जान ही ले लिया आपके बारे में? मामला जो शुरू हुआ था वो ये है कि वाल साहब 3 दोस्त थे, तो 2 दोस्तों के दरमियान ना लेन देन था। तो जिनका लेन देन था ना वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि यार तुम मेरे पैसे दो, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे तुम। तो वालिद साहब पास बैठे थे, तो दोनों दोस्त थे वो वालिद साहब के भी। तो वो फिर जो जिसने लेने थे ना वो कहता है कि भाई आप दे दो, फिर वो नहीं दे रहा तो आप दे दो, आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो वालिद साहब ने कहा यार थोड़ा सा टाइम दे दो उसे। उसने बोला कि टाइम भी आपने ही लेना है, मैंने उसको नहीं देना। तो वालिद साहब ने फिर ना उसने जिसने कत्ल किया ना वालिद साहब का, उसको थोड़ा सा टाइम ले दिया और ज़मानत दे दी, गारंटी दे दी। यानी कि जिस शख्स के आपके वालिद साहब जामिन बने, जी जी, और आपके वालिद साहब की वजह से उस शख्स को मोहलत मिली, पैसे मिले, जी जी, उसी शख्स ने पैसे वापस करने के बजाय आपके वालिद को मार दिया। जी जी, मर्डर कर दिया। अच्छा। तो इस तरह से जो है ना वो 1 साल का टाइम मिला, जो जिसने लेने थे उससे 1 साल का टाइम लिया। टाइम लेने के बाद जब 1 साल गुजर गया तो वालिद साहब के पास आता था वो शख्स जिसने लेने थे कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे हैं, मेरे पैसे लेके दो आप उधर से, आपने ज़मानत दी थी, मैंने तो उसको 1 मिनट का टाइम नहीं था देना। तो फिर वालिद साहब के पास वो शख्स आता था जिसने लेने थे, फिर वालिद साहब जिसने देने थे उसके पास जाता था, जिसने कत्ल इसके ज़ामिन बने। जी जी, जिसने कत्ल किया। तो वालिद साहब जाते रहे हैं, 3-4 मरतबा गए हैं उसके पास कि भाई अब टाइम हो गया, पैसे दे दो। तो उसने 2-3 ना वादे किए कि भाई फ़लाँ दिन आना मैं दे दूँगा या फ़लाँ दिन आना मैं दे दूँगा। तो जब वालिद साहब जाते थे तो वो ना बस ऊंच नीच करके वालिद साहब को भेज देते थे, भाई आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। यानी बहाने बना देते, बहाने, हीले बहाने, बातें कर दी जी। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। तो इस तरह से ना वो चल रहा था। तो जब लास्ट टाइम वाल साहब उधर गए हैं ना, तो उसने जाके वाल साहब जाके वहाँ पे उसके घर गए हैं, उसको बाहर निकाला आया। वो पहले उसने वाल साहब को कॉल की है व्हाट्सएप पे कि भाई मैं देखो पैसे मैंने बना लिए, पैसे थे उसके पास। जख्मी हालत जो हाँ जी, उन्हें अपना पैटर्न मोबाइल का खोलिया है माशाल्लाह। पढ़े लिखे सन, बड़े थे वो। उन्हें खोल के जो पैटर्न तेनों वैस नाल गल की, वैस बेटा आ जा, उन्हें इसने मैंने 2 फैर मारते। ये ने फिर नाल एक मामू का बेटा लिया, एक लिया फुफो का बेटा। ये 7 मिनटां च रिहान ते पहुंचे। जिस टाइम बेटा थोड़ा पहुंचे तो उस टाइम वो हाँ जी, उत्थे साडे रिश्तेदार भी सन। उन्हें आख्या मैंने फलाने के घर छड्ड आओ। कोई बंदियां नूं नहीं सी नां दा पता चलदा। उत्थे मेरी खाला का बेटा सी, वो पुलिस लगा, छोटा थानेदार। तो उहदियां दुकानां बड़ा मशहूर। उन्हें आख्या मैनूं ओहदे कोल छड्ड आओ, कोई बंदा नहीं लिया। उन्हें कुर्सी ते बिठा दिता है, उत्थे कोई पानी पियाई गया, कोई बोतल पियाई गया, कोई लागे जुड़े ने, किसी की सियान च नहीं आया। रिश्तेदार उत्थे साडे बड़े सी। ये पहुंचे तो उनसे उन्होंने अखां बेहोश हो गया। उसके बाद ये नाज़रीन बता रही हैं, यहाँ पर देखें जुल्म की इंतहा कि जो भी इन्होंने पूरा अपना जो एक मामला बताया है उसमें यह था कि इनके खावन जो थे वो जामिन बने थे, और जिस शख्स के जामिन बने, जिस शख्स को पैसे मिले, उनके जामिन बनने की वजह से उसी शख्स ने पैसे वापस करने की बजाय 1 साल तक तो इनके खावन को जो है वो परेशान किए रखा, पैसे वापस नहीं दिए। और जिन लोगों
ने पैसे दिए थे वो ज़ाहिर इनके खावंद को बार बार पूछते थे, इनको तंग करते थे कि आप जो रकम जिसके ज़ामन बने वो वापस दिलाएं या आप दे दें। लेकिन उस शख्स ने, वो कहते हैं ना कि इनके खावंद ने अच्छाई की उस शख्स के साथ, उसका ज़ामन बन के उसी ने ही मुबैना तौर पर इनके खावंद को पैसे वापस देने के बहाने बुलाया और फिर 2 गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। कितनी अमाउंट थी ये जिसके मामला था सारा? 7.5 लाख के वाल साहब जामन थे और तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए हमने खुद उससे लेना था, जिसकी गारंटी दी है। यानी कि खुद भी पैसे दिए खुद हुए भी लेने थे और उसको लेके भी दिए हुए थे जी पैसे, जी कहीं और खुद से भी जी खुद भी लेने थे और किसी के पैसों की गारंटी भी दी हुई थी वाल साहब ने। तो ज़्यादा वाला साहब कहते थे मेरे ना दो, जिसकी गारंटी दिया उसके तो दे दो यार, वो मुझे बहुत तंग कर रहा है और दोस्ती में भी खलल पड़ रहा है, तो तुम्हारे साथ तो बस थोड़ा सा ताल्लुक है तो तुम अब पैसे दे दो। जब लास्ट टाइम गए हैं वाला साहब तो उसने ना आगे से कॉल करके बुलाया मुबैना हाँ। तौर पर कि पैसे हैं तुम लाके ले जाओ, आके ले जाओ, वो पहले ही इरादे पे था। ठीक है। तो वहाँ से फिर वो वाल साहब गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वाल साहब वहाँ से आ गए हैं, निकल आए हैं। फिर वो जो शख्स था ना उसने फिर गन लिया अपने घर से, वो वाल साहब के पीछे आया बाइक पे, वाल साहब भी बाइक पे थे, वो वाल साहब के पीछे आया बाइक पे। तो उसके साथ एक शख्स और था। तो रास्ते में ना जहाँ पे जाड़ भी अबान आता है वहाँ पे वाल साहब पे उसने चलती गाड़ी पे फायर किए। तो वाल साहब वहाँ पे एक दफ़ा गिर गए, फिर वाल साहब ने वहाँ से हिम्मत की है, मोटरसाइकिल किक मारी, बाइक पे थे, चलते बाइक पे गोली मारी जी जी। तो किक मारी तो फिर ना बाइक चलाई है, गोली लगने के बावजूद आपके वालिद हिम्मत करके खुद बाइक चला जी जी 3-4 किलोमीटर जो है ना वो वाल साहब ने बाइक चलाई। तो फिर वहाँ से एक चौक में पहुँचे, एक कस्बा था, तो वहाँ से लोगों ने उठाया, फिर वो जीटी रोड पे ले आए। जीटी रोड पे मैं पहुँच गया, तो मेरे पहुँचने से पहले जब मैं पहुँचा हूँ तब वाल साहब जो है ना अपने आखिरी सांसों पे थे, बस एक मरतबा उन्होंने देखा, फिर वो ख़त्म हो गया। अच्छा ये दसो, इस सारे मामले तो बाद फिर तुसी पुलिस की रिपोर्ट कराई ते की मामला था किस तरह चले गए? क्योंकि 4.5 साल हो गए ने अभी तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਲੇ ਆ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਪੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, FIR ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਇਹ 2021 ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਆਓ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਸਾਰਾ ਛਾਣਿਆ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਂ, 1 ਜੂਨ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੋਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਸਰੇਆਮ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਲਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਖੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਥਾਂਦਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ 2 ਮੋਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੌਲ ਸਨ ਉਹ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਡੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਨੂੰ 10-11। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੁਬਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਦੁਬਈ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, 23 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ। ਕਰਾਚੀ ਉਹਦੀ ਫਲੈਟ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ।
तो 4.5 हो गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਕਤਲ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ FIR ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਰੋਲ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕसान पहुंचाएगा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ये भी केस की मुद्दइयाँ हैं 4.5 साल तकरीबन हो चुके हैं इनके खावन को उनका मुबैना तौर पर कत्ल हुए हुए और जो कातिल हैं बकौल इनके पहले वो दुबई चला गया और इस वक्त के जो मामला ये पता चल रहे हैं कि वो इस वक्त इटली में मौजूद हैं और इन लोगों को इस फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है कि केस वापस लो सुलह कर लो नहीं तो इनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता कॉल करके क्या बोला उन्होंने आपको वो उन्होंने कॉल करके बोला बेटा वो जो था ना उसने मुझे फायर लगा दी है पता नहीं मैं बचता हूँ या नहीं लेकिन तुम देख लेना मामला देख लेना तो इतनी बात हुई है वाल साहब से बस मैंने फ़ोन ऑफ़ किया स्विच ऑफ किया मैं वाल साहब के पास चला गया तो जब हम हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने बताया कि बस ख़त्म हो गया वाल साहब डेथ तो ये कितना अर्सा पहले का ये 4.5 साल हो गए 4.5 साल 4.5 FIR हुई उस वक्त आपकी बहुत पुलिस मुश्किल ने उस वक्त हुई बहुत मुश्किल हुई बहुत मुश्किल क्यों पुलिस ने क्यों इतना क्या क्या कह रही थी उस वक्त इशू उस बना वक्त? दिया पुलिस ने कि ये थाना फरोजवाला की हदूद में हुआ है जो सिटी वाले कहते सदर वाले कहते थे कि जी ये हमारी हदूद में नहीं हुआ फरोजवाला की हदूद में हुआ फरोजवाला कहते थे कि ये सदर वालों की हदूद में हुआ है हमारी हदूद में नहीं हुआ सारी रात हमने बहुत मुश्किल FIR हमारी काटी गई बहुत मुश्किल ठीक है तो FIR तो कट गई लेकिन उसके बाद जो मामलात थे तो हम थाना फरोजवाला जाते थे वहाँ से हमें तसल्लियाँ मिलती थी जी आज कर देंगे ये कर देंगे बंदा पकड़ लेंगे बंदा नहीं पकड़ा फिर हम DPO के पास जाने लगे उस वक्त के जी 2021 की बात है ना जी ये? जी ये साहब थे DPO थे मुख्तार आसम मुख्तार थे ऐसा उनका नाम था जी। तो उनके पास बड़े चक्कर लगाते थे हम यहाँ से लोगों को लेके जाते थे बड़ी अपीलें करते थे बड़ी मिन्नतें तरले करते थे हमारा बंदा पकड़ो तो क्या जवाब अच्छा पकड़ा ही नहीं गया था उस वक्त नहीं भी? नहीं तो कैसे कहाँ निकला कहाँ गया ये ये बंदा गायब हो गया कत्ल करने के फौरन बाद तो ये गायब हो गया तो उस पाकिस्तान में ही या कहीं और मुल्क चला गया तब पाकिस्तान में था छुप गया छुप के रहा है तो फिर हम जाते रहे हैं DPO साहब के पास वहाँ से हमें कोई जो है ना हमारी दादर से नहीं हुई हम बड़ा जलील हुए हैं वहाँ पे फिर वहाँ से नहीं हुई जब तो हम IG ऑफिस गए हैं फिर IG ऑफिस गए हैं वहाँ से 2-3 वो कॉल्स करते थे फ़लाँ जगह पे जाओ फ़लाँ जगह पे जाओ जब वहाँ पे जाते थे वो भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते थे भाई फ़लाँ जगह जाओ आपका मामला हल हो जाएगा ये करो मामला था हल हो जाएंगे तो नहीं था हो रहा कुछ भी नहीं था हो रहा बड़ी मायूसी हुई कानून देख के पाकिस्तान के कानून देख के ना बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई फिर मायूस तो हम खुदा से तो नहीं हुए लेकिन कानून से होकर हम घर बैठ गए कि हमारा कहीं पे भी कुछ भी नहीं अब होगा कब से आप लोग जो है दोबारा रब्ता नहीं कर रहे कितना अर्सा हो गया थक हार के आप लोग बैठ गए? तकरीबन साल से कम अरसा हो गया 6-7 माह हो गए हैं 8 माह हम नहीं जा रहे यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए नाजरीन कि 4.5 साल तकरीबन बकौल मकतूल के जो बेटे हैं इनके इन्होंने कोशिश की FIR तो दर्ज होगी लेकिन इन्होंने कोशिश की कि जो कातिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके लेकिन वही बात थक हार के तकरीबन 4-4.5 साल बाद ये लोग अब 6 महीने से अब ये बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है पुलिस के लेकिन किसी तरीके से इन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया हमारी कोशिश है कि हम इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ ताकि इनकी जो केस की तफ्तीश है वो मेरिट पर हो सके इनके जो वालिद को जिन लोगों ने कत्ल किया इनको कानून के मुताबिक सज़ा मिल सके अच्छा वो शख्स जिसने कत्ल किया फिर वो छुपा रहा उसके बाद फिर कहाँ गया उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्री हो गया था भाग गया था यहाँ से एयरपोर्ट के ज़रिए गया वो एयरपोर्ट से गया वो ट्रैवल किया उसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट से बंदा हमें ये सोच के बड़ी हैरानगी होती है कि बंदा मर्डर भी कर रहा है और
पाकिस्तान का ऐसा इदारा इस्तेमाल करके भाग गया है जो जहाँ से वो निकल नहीं सकता। एयरपोर्ट से गया है, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गया है वो, वहाँ से उसने टिकट ली है, दुबई का वीज़ा था उसका, तो वहाँ से उसने ट्रैवल किया है। तो हमें तो समझ नहीं थी आ रही कि हम किस तरफ जाएँ, हम कहाँ किससे पूछें, किसका दरवाज़ा जाए खटखटाएँ। कानून तो हमें नज़र ही नहीं आया 4.5 साल में। किसी एक बंदे ने भी कहा हो भैया आपका ये काम है ना जो ऐसे हो जाएगा, किसी एक बंदे ने भी हमारा काम नहीं किया, पुलिस ने काम किया ही नहीं है। उस वक्त किया, अब तो चले हम अपील सिर्फ कर रहे हैं, हम तो FIR उम्मीद की हद करते हैं तक शायद। किया, सिर्फ हाँ। FIR की हद तक किया। ठीक है, उसके बाद तो अभी इस वक्त आपको क्या लगता है कहाँ पर है आपके जो वालिद को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाला शख्स कहाँ है? वो इटली में। इटली में। तो क्या अब आप लोगों को कोई धमकी वमकी मिल रही है? कोई हमें ना बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है वो इस तरह से कि हमें ना आए दिन मैसेज आते रहते हैं लोगों के कि भाई हमसे सुलह कर लो, सुलह ना करोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि हमें ना जो बच्चे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो वालिदैन तो परेशानी बनती है घर में। कि आपकी सिस्टर हैं जिनकी अपील जी मेरी सिस्टर। किसके नाम अपील उन्होंने दरखास्त की है? ये ये डीपीओ के नाम है या किसी और के नाम पे की है? ये अपील मेरे ख्याल DPO के नाम पे की है। अच्छा, और IG पंजाब के नाम पे। ठीक है। IG साहब से मुतालबा है कि ये बंदा जल्द से जल्द जो है ना इसे पाकिस्तान में लाकर कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में कानून है। बिल्कुल जी, हमारी भी कोशिश है टीम जुर्म पे नकाब की 24 न्यूज़ की कि मुस्लिमों की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाया जाए, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इनके केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। और जो हमारे तक जो एप्लीकेशन जो चीज़ पहुंची थी उसमें एक बेटी की फरियाद करके उन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई, जिसको DPO साहब और आला अफसरान और IG साहब तक जो है उन्होंने दरख्वास्त पहुँचाने की कोशिश की। तो हमने सोचा कि हम उस फैमिली से जाके बात करते हैं, और जैसे कि भाई ने बता दिया, इस केस की जो मुद्दई हैं उन्होंने भी बता दिया कि इनको इंसाफ जो है वो 4.5 साल से तो अब तक नहीं मिला, और अब इनको धमकियाँ मिल रही हैं। हम यही चाहते हैं कि केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, इस फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए, और जिसने जुल्म किया है उसको कानून के कटहरे में लाकर कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाए। तुसी जी अपील कर सकते हो, की अपील करना चाहोगे? लिहाजा बेटा सानू इंसाफ मिलना चाहिए। बेगुनाह बंदा साडा दुनिया तो टुर गया। 18 साल तो दुबई रहा, दुबईयों आया ये तो इन्होंने लोगों ने जो किया, साडा तो रिश्ता ही नहीं सी पाकिस्तान, ਅਸੀਂ बाहर प्रदेश सारी जिंदगी कमाया दिखा, साडा इत्थे किसी घुम्मत नाल किसी नाल कोई सीर ही नहीं सी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ नहीं मैं अपने बच्चों को ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ? 18 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਬਾਹਰ ਰਹੇ? हाँ जी साडी ਕਿੰਨਾ सारी ਸਾਲ family ਪਾਕਿस्तान ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਆਏ ਸਨ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਦਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ। ये जी बस हम ये गुजारिश करेंगे इस केस की तफ्तीश दोबारा से मेरिट पर हो। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਦਬਾਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਫੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਫੈਲ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੱਭ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ DPO ਕੋਲ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਆ, ਰੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲ। अब ये जी अब ये मामलात हैं, सिस्टम ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ थाने। ये 2021 की बात है और अब 2026 आने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये मामलात जो नई हुकूमत बनी है, नए जो DPO साहिबान हैं, अफसरान हैं, वो ऐसे केसेस को भी देखेंगे जिन केसेस के मुद्दईआन दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद इंसाफ के लिए अब भी मुंतज़र हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनकी इस केस को दोबारा से मेरिट पर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।